आज 4 सितंबर दिन बुधवार है। आज की लेटेस्ट न्यूज में हम जानेंगे आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से 4.15 लाख लोग प्रभावित हुए। नौसेना ने मदद के लिए आगे बढ़ी। एंड दूसरी न्यूज़ है नष्ट करने वाली घटनाओं में सुप्रीम कोर्ट का न्याय। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हम अपनी रीडिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम इंग्लिश रीडिंग करते हैं, फिर इसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी रीडिंग कीजिए। चलिए। At least 17 people have died due to rain-related incident. Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu wants stringent action for lapse in relief work. Thousands of the Denizens who were enduring one of the worst flood fury in last several decades in Vijayawada on Tuesday, August 3rd, 2024, were seen moving out their houses of safety as the floodwater receded a little along the way through the flooded streets. As many as 4,15,171 people were affected by rain and flood in Andhra Pradesh. The government has shifted 43,417 people to 163 relief camps across the state. The government has set up 197 medical camps having their necessary belongings packed in bags. The Denizens, along with their family members, were seen wading through waist deep water in reach the flyover the Ajit Singh Nagar, one of the worst affected areas in city. They were on their way to the relative peace in parts of city that were less affected by flood or nearby areas. Most of them were in their night dresses and without slippers. They were waded in water for around 2 kilometers amid the desert to get auto rickshaw or a bus. बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राहत कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई के लिए वार्निंग दी है। विजयवाड़ा में पिछले कई दशकों से भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं हजारों निवासियों को। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है। मंगलवार 3 अगस्त 2024 को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा गया क्योंकि बाढ़ का पानी थोड़ा कम हो गया था, जिससे वे जलमग्न सड़कों से होकर निकल सके, जल से भरी हुई सड़कों से बाहर निकल सके। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से 4,15,171 लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने 43,417 लोगों को राज्य भर में 163 राहत शिविरों में पहुंचाया। सरकार ने 197 चिकित्सा शिविर स्थापित किए। अपने जरूरी सामान को बैग में पैक करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ शहर के सभी ज़्यादा प्रभावित इलाकों से एक अजीत सिंह नगर के फ्लाईओवर तक पहुंचने के लिए कमर तक पानी में चलते हुए देखे गए। मतलब लोग अपने ज़रूरत की सामान लेकर के फ्लाईओवर तक पहुंचने के लिए गए जब उनके कमर तक पानी भरा हुआ था। वे शहर के इन इलाकों में अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे जो बाढ़ में कम प्रभावित थे, जहाँ पे बाढ़ कम थी, या आसपास के इलाकों में। उनसे ज़्यादातर लोग रात के कपड़े पहने हुए थे और उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थे। वे ऑटो रिक्शा या बस पकड़ने के लिए बूंदाबांदी के बीच में लगभग 2 किलोमीटर तक पानी में घुसे। आइए फ्रेंड, फिर से आते हैं अपनी रीडिंग में। Some of them said they had planned to go to their relative place outside Vijayawada and stay there until the situation go back to normal in city. Even as the rescue and relief operation were at a brisk pace, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu warned the officer and his cabinet colleagues of stringent action for any dereliction of duty during the relief and rehabilitation work. Even the minister, if found failing to perform their duties, will face a consequences, Mr. Naidu said after turning the flood-hit areas in the city. Referring to damage done of go to gate number 69 to Prakasam barrage on Krishna River after some boat rammed into the, Mr. Naidu suspected a possibly sabotage. The government will order to inquiry into the incident. Meanwhile, Information and Public Relations Minister
Kulusu Parthasarthi told the media and 7,02,000 food packages were distributed to the affected people. The government was supplying food packets. As many as 40 drones were being used to supply food packets to the area that went out of reach due to flood. As many as 55 tons of flood were supplied through helicopter. The government was supplying medicine through the drones, ensure that fever and other waterborne diseases would not spread, he said. At least 17 people have died due to rain-related incident in the state so far, while 2 persons were missing as of Tuesday. 9 deaths were reported in NTR district, while 7 deaths were reported in Guntur district. A death was reported in Palnadu district when person riding a two-wheeler were washed away in a stream. Cultural cord blast was reported in 1,80,244 hectares in 20 districts. Horticultural crops in 15,109 hectares were reportedly affected by the flood. तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी स्कीमिंग करते हैं, जानते हैं इसका अर्थ। फ्रेंड्स, बाढ़ में प्रभावित लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि उनकी योजना वो प्लान कर रहे हैं विजयवाड़ा के बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने और शहर में स्थिति सामान्य होने की, जब नॉर्मल स्थिति हो जाएगी तो वापस, जब तक नॉर्मल स्थिति नहीं हो जाती तब तक वहीं रुकेंगे। हालांकि सेफ्टी, बचाव एवं राहत के कार्य तेजी से चल रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राहत एवं पुनर्निवास दूसरी जगह स्थापित करने के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर अधिकारियों और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने वार्न किया है कि कोई भी लापरवाही न हो। शहर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद भी नायडू ने कहा, यदि मंत्री भी अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल पाए गए तो उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि जो मंत्री अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, बाढ़ में लापरवाही करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें भी वार्निंग से दी है। अगेन, कृष्णा नदी पर सम बैराज के गेट नंबर 69 को कुछ नावों के टकराने से हुए नुकसान का जिक्र करते हुए नायडू ने संभावित तोड़फोड़ की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि 69 नंबर पर ये आशंका जता रहे हैं कि वहाँ पे किसी ने शायद कुछ बिगाड़ तोड़फोड़ की है। सरकार की इस घटना की जांच की आदेश देगी। नायडू ने कहा कि अब वो इसके लिए जांच बैठाएंगे। इस बीच सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने मीडिया को बताया कि प्रभावित लोग 7,20,000 खाद्य पैकेट वितरित किए गए हैं। सरकार बाढ़ पीड़ितों को नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना उपलब्ध करा रही है। फ्रेंड्स, बाढ़ के कारण प्रभावित इलाकों में खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए 40 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए 55 टन खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। उन्होंने कहा है कि सरकार ड्रोन के माध्यम से दवाइयां उपलब्ध करा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बुखार और अन्य जल जनित बीमारियां न फैलें, मतलब वायरस न हो। राज्य में अब तक वर्षा जनित घटनाओं के कारण कम से कम 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि मंगलवार तक 2 व्यक्ति लापता थे, मतलब लापता हैं। कह सकते हैं कि 17 लोगों को अभी तक डेथ हो चुकी है बाढ़ के कारण। एनटीआर जिले में 9 मौतें हुई हैं और जबकि गुंटूर जिले में 7 मौतें हुई हैं। पलनाडु जिले में 1 व्यक्ति की मौत तब हुई है जब दोपहिया वाहन सवार लोग नदी से बाहर गए हैं। 20 जिलों में 1,80,244 हेक्टेयर कृषि फसल को नुकसान पहुंचने की खबर है। ये न्यूज़ आई है कि 1,80,244 हेक्टेयर खेतों में फसल नष्ट हो चुकी है और बाढ़ में 15,109 हेक्टेयर बागवानी फसलें प्रभावित होने की न्यूज़ है। तो 15,109 हेक्टेयर बाग वाले फसलें खराब हो चुकी हैं, ऐसा रिपोर्ट किया गया है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपनी आज की दूसरी द हिंदू एडिटोरियल के दूसरे टॉपिक में, डिमोलिशन स्क्वाड ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड बुलडोजर जस्टिस। ध्वस्त सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर न्याय पर, मतलब नष्ट करने वाली जो घटनाएं होती हैं उनमें जानते हैं आज कि सुप्रीम कोर्ट का न्याय बहुत ही बॉम्बास्टिक रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी रीडिंग में वापस आते हैं। चलिए अभी रीडिंग कीजिए। Courts cannot be obvious to communal symbolism of the bulldozer. In raising question about the legality of the demolition of house belonging to alleged offenders, the Supreme Court of India has articulated a valid and widespread concern about the use of the bulldozer as a form of retribution. The targeted demolition of Muslim houses become part of the governance model of BJP ruled state, and if the court can endure the impunity with which these extra legal measures are used by those in power, it would become a wholesome intervention, as Justice B.R. Gavai headed a division bench with the Justice K.B. Viswanathan remarked, the law indeed does not permit anyone home to be demolished just because they are accused in a case, and it cannot happen even in the case of convict. The judiciary cannot be obviously to political symbolism that the bulldozers have acquired as an instrument of the collective punishment inflicted of those the authorities, labor and realtors. There are instances of the houses named suspect being demolished without regard to the fact that the rest of family may have nothing to do with the offense. However, considering the local laws of permit removal of the encroachment and unauthorized construction, the bench has articulated in initiation laid down unfirm guidelines on the pan-India basis to streamline procedure and action against such structure. Observation by Justice Viswanathan indicate that these may involve the manner in which unauthorized structures are to be identified, notice issued to those concerned, and fair hearing given them before any action. तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, अनुवाद कर लेती हूँ। कोर्ट मतलब अदालतें बुलडोजर के सांप्रदायिक जातिवाद प्रतीकवाद से अनभिज्ञ नहीं हो सकती, मतलब ये नहीं कर सकती है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। रिपोर्टेड कथित अपराधियों के घरों को नष्ट करने की वैधता पर सवाल उठाते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिशोध के रूप में बुलडोजर के इस्तेमाल के बारे में एक वैध व व्यापक चिंता व्यक्त की है, और मुस्लिम घरों में लक्षित करके ध्वस्त करना भाजपा शासित राज्य शासन मॉडल का हिस्सा बन गया है। और अगर न्याय सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इन अतिरिक्त कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने की दंडहीनता को समाप्त कर सकता है तो यह एक अच्छा हस्तक्षेप होगा। न्यायमूर्ति के.बी. विश्वनाथन के साथ एक खंडपीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति V.R. गावई ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कानून वास्तव में किसी के घर को सिर्फ इसीलिए ध्वस्त करने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि किसी मामले में आरोपी है। मतलब वो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा, एक ट्वीट किया है कि कानून किसी का घर ऐसे नष्ट नहीं कर सकता कि अगर वो अपराधी है तो उसका घर नष्ट कर दिया जाए, और यह किसी दोषी के मामले में भी नहीं हो सकता, मतलब जो दोषी है उसका घर भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा न्यायपालिका उस राजनीतिक पॉलिटिकल प्रतीकवाद से अनजान नहीं हो सकती, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो वो न्यायपालिका अनजान नहीं बैठी रह सकती है, जिसे बुलडोजर ने सामूहिक दंड के साधन के रूप में हासिल कर लिया है। वे कहते हैं कि यह जिसे अधिकारी दंगाई करार देते हैं, वो कहते हैं कि यह तो मनमानी है, दंगाई करना है। ऐसे उदाहरण हैं जब नामित संदिग्ध हैं, नामित संदिग्ध के घरों में इस तथ्य की परवाह किए बिना ध्वस्त कर दिया गया है कि परिवार के बाकी सदस्यों को अपराध से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। हालांकि
हालांकि यह देखते हुए कि स्थानीय कानून अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माण को हटाने की अनुमति देते हैं और बेंच ने ऐसे ढांचों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक समान दिशा निर्देश निर्धारित करने का इरादा व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वे एक दिशा निर्देश बनाएंगे अपराधियों के विषय में, ऐसे घर नष्ट नहीं किए जा सकते। इस न्यूज के बारे में उन्होंने कहा कि एक दिशा निर्देश बनाएंगे। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने जो कमेंट किया है, उन्होंने यह संकेत किया है कि इसमें अनाधिकृत जो अनऑथराइज्ड ढांचों की पहचान करने का तरीका है, जो संबंधित लोगों को नोटिस जारी करना और किसी भी कार्रवाई से पहले उनकी निष्पक्ष सुनवाई शामिल हो सकती है। मतलब ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं जिसमें पहले उन्हें नोटिस दिया जाए और उस पर बिना किसी पक्ष के कार्रवाई हो, सुनवाई हो उनकी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की ओर। It is here that the court should treat carefully. The laying down the guidelines should not send out a message that the obvious correlation between the incident and communal violence and the demolition that followed them can be blurred by the administrative trickery in many classes. Backdated eviction notice and produces the justified demolition, even the obvious gloating over the inhabitants' plight, betrayal, and political and communal motive. The idea of digitalizing eviction notice may address the problem of backdated notice, but it may not be possible to make the transition in all parts of country. The real question that the court should grapple with what is whether claim that the only encroachment being demolished is enough to justify the egregious violation and rule of law and absence of due process. In several recent instances of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, and Delhi, it ought to be clear by now that the ruling party in these states seeks to gain political mileage by giving the impression that the regime of action externally against the anti-social element, even while thinly masking the bluntly communal action by passing it off as an anti-encroachment drives. तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपनी मीनिंग में। यहीं पर न्यायालय को सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। दिशा निर्देशों को निर्धारित करने से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं और उसके बाद होने वाले विध्वंस के बीच इस पर संबंध प्रशासनिक चालाकी से धुंधला हो सकता है। कई मामलों में इन डेमोन्स्ट्रेशन विध्वंसों को उचित ठहराने के लिए पिछली तारीख में बेदखली नोटिस पेश किए जाते हैं, जबकि निवासियों की दुर्दशा पर स्पष्ट रूप से गर्व करने से राजनीतिक और सांप्रदायिक मकसद का पता चलता है। बेदखली नोटिसों मतलब जो नोटिस नहीं दिए देते, जिसमें कोई दखल नहीं होता है, बेदखली नोटिसों को डिजिटल करने का विचार पिछली तारीख के नोटिसों की समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन देश के सभी हिस्सों में इसे लागू कर पाना संभव नहीं हो सकता। असली सवाल ये है जिसे न्यायालय को जूझना चाहिए कि वह यह है कि यह क्या यह दावा मेन मुद्दा ये है यहाँ पे कि यह दावा कि केवल अतिक्रमण ही वैध है, सही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में हाल ही में हुए कई मामलों में कानून के शासन का घोर उल्लंघन और उचित प्रक्रिया की अनुपस्थिति को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है। मतलब जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली में
जो कानून का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे, उसे अनुचित ठहराने के लिए ये बातें पर्याप्त हो चुकी हैं, पर्याप्त हैं। अब तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इन राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी यह धारणा देकर राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहती है कि शासन असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से काम कर रहा है, जबकि वह अतिक्रमण विरोधी अभियान के रूप में इस सांप्रदायिक कार्रवाई को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की अपनी न्यूज़ का प्रोनाउंसिएशन।